Yes. So I do have expertise in SQL, PySpark, AWS Cloud. Where we need to use in cloud services? For example, EC2 for in storage ES3. I think you guys also need to grasp that part as well. But yeah, for this session, I think our focus is on SQL part only. Because CRUD applications is a main part of your front end job. And if you're comfortable with the CRUD application, like how you can write in query on a relational databases, if you'll get good idea on that part, yeah, then that will be obviously helpful for you guys in your production environment or in production projects. So guys, I think I introduced myself. If anyone want to introduce themselves, go ahead. You can introduce yourself. Unless if no one want to introduce yourself, then I'll start the session. इंट्रोडक्शन करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, 50 लोग हैं तो Yeah, सेशन yeah. यस Okay. और सेशन अगर हिंदी में होगी सुनील तो कंफर्टेबल रहेगा सबके लिए। मतलब टेक्निकल चीजें इंग्लिश में कर सकते हो एक्सप्लेन, बाकी हिंदी में ठीक रहेगा। ओके Okay, sure. Thank you. थैंक यू। Okay, guys, I think then I'll start the session. Let me share my screen. So I hope it is visible to all of you. Yes, sir. Yeah, okay. So before starting SQL, so we want to cover like what is the basic database management systems. So as Ravi sir said as of now, right? So we do have two different kind of databases. One is a relational database and another one is a non-relational database. Where in relational database, everything it will be in the tabular format, where we need to have we have a complete table, which where we can define columns, and the columns respective they do have some fields. And in non-relational databases, it is not mandatory to have a list of columns or a list of data. It can be X number of columns and Y number of data. So that is the purpose of a NoSQL database. I think that will be covered later in the MongoDB. So first, let me start with the database management systems. Okay, so first, we need to understand what is DBMS. So why DBMS is important. Okay, so in production databases or anywhere, if we'll go, we're going to have one database. It is kind of a physical database, or nowadays everyone is using cloud database. So it is an location where our data has been stored. Okay, so for example, we are running a class and we do have a couple of participants now. So how many participants has been joined, how many have been left, how many were present till the end of the session, it will go to the Zoom database. And the Zoom database, it will give analytics to the host. Okay, so that database, it is nothing but a DBMS. Okay, where the actual data has been stored. Okay, then after everything, we do have applications. Obviously, if it is all the world has been now derived by data. So everywhere, wherever you go, now everything is depend upon data. Whether it is a banking, where it is airline, where you'll do reservations or you'll check schedules, or in IRCTC as well, where you'll book the tickets of a trains, where it will show like how much available seats are there, how much RAC is there, what is the confirmation percentage. So everywhere now data has been used, and all applications have been become data driven. Okay, so after that, what was the purpose of having data here? Okay, so what data will do in the sense of relational databases. So as we have X number of columns and X number of rows, so that consistency will be there. For example, if I'll say like we have a student table where we do have column named as an ID, then student name, then student email ID, and then student address. Okay, so in relational databases, the student have to fill all the fields. For example, there will be one student called as Sunil. So there will be one ID assigned to Sunil. There will be one email ID assigned to Sunil, and there will be one address assigned to Sunil. Okay. So due to this can be consistent, and due to this, we'll get rid of a redundancy. Okay. So that was the main important important function of RDBMS. Okay.
Then obviously we're going to do crude operations. So the atomicity is important because, for example, if you're working for a banking client and from UI, obviously there will be an UI to do and fund transfer. So for fund transfer, he will select like he will go to the banking section and he'll transfer to another account. He will enter the amount and the account details, and after that the transaction will happen. So atomicity, why it is important? If the transaction failed in between, then banking application, they should know like where it is failed, and the money has been at the particular time, might be money has been debited from your account but not has been credited on the receiver's account. So banking should know. So after some times, might be nowadays bankings are taking 28 hours to 24 hours to 48 hours, depending upon that time frame, they will return back your money. Okay, so if the atomicity it will be there, then it will be perfect scenario for banking transfer scenarios. Okay, so it will keep track like transaction transaction has been done or not. Okay, so that will do an atomicity. And concurrent access, so obviously you guys know like if I'll say concurrent access in the sense like abhi abhi for example अपने अपने बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर जो भी एप्लीकेशन है उसमें 100 यूजर्स होंगे, तो 100 यूजर्स वो एट अ टाइम डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर 100 यूजर्स एट अ टाइम कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। सो अपना सिस्टम और अपना वेब पेज और यूआई जो भी है वो इतना कॉन्करेंट होना चाहिए कि वो एट अ टाइम वो 100 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सके। वो इन बिटवीन इन बिट ओके, तो वो इन बिटवीन लॉस नहीं होना चाहिए। Guys, if I'm going fast, then let me know. I might be fast. Okay, and apart from that, there will be some security problems which will be handling into the SQL. Later, I will explain you like अपने पास different type of access रहेंगे. One will be the user access, another will be the SQL query access, one will be the SQL administrator access, another will be the SQL developer access. That will be a secondary part of it. Okay. So as of now, all be clear like what is a DBMS, why it is important. If anyone have any question, just let me know. I'll happy to answer you guys. Okay, seems like we don't have any questions. So let me go ahead and explain what is RDBMS. Okay. So as I informed you earlier, right? So for example, I explained you about a student table where we're going to have a student ID, student name, or a student address. So this is kind of a similar table structure is there. In SQL or in a relational model, there should be a column name. So the first thing which you guys are saying, which named as an attribute, are nothing but in column names. So a column names है. Okay, so customer ID, customer name, customer street, customer city and account number, ये सब कॉलम नेम्स है। और इसमें जो भी डेटा है, अब भी अपन रिलेशनल मॉडल अगर यूज कर रहे हैं और सीक्वल यूज कर रहे हैं, तो कस्टमर आईडी में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कस्टमर नेम में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ऐसा हर एक कॉलम में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सो डिस्टिंग्विश अगर अपन नो सीक्वल के साथ और मोंगोडीबी जो भी है, अगर उसके साथ अपन डिस्टिंग्विश करेंगे तो एज अ वो जेसन फॉर्मेट में स्टोर होगा। और उसमें क्या होगा कि एक फील्ड है वो मैंडेटरी रहेगा। फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी फील्ड है वो मैंडेटरी रहेगा, और कस्टमर नेम और जो भी अदर फील्ड है वो एक या दो फील्ड मैंडेटरी रहेगा और अदर फील्ड्स वो मैंडेटरी नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल माय कस्टमर आईडी विल बी 1 एंड माय कस्टमर नेम विल बी सुनील। So but in this scenario I don't want to give my address or my account number. Okay, so I have that ability to store that data in a JSON format. You can say like it will be the semi-structured format, and this one is a structured format. So there you have ability not to store this information. But in relational model, you have to give the information, you have to fulfill the schema requirements. Okay, have you guys understood what's the relation model? स्कीमा क्या होता है ये बता दोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा।
या सो स्कीमा क्या होगा, अपने पास एक डेटाबेस रहेगा। सो डेटाबेस में एक स्कीमा और एक टेबल्स और सब कुछ रहेगा। सो स्कीमा इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी फॉर एग्जांपल अपना टीयूसी क्लास है। सो अभी टीयूसी क्लास के अंदर इफ यू नो लाइक देयर विल बी मल्टीपल बैचेस आर रनिंग। सो टीयूसी क्लास बोल के एक स्कीमा रहेगा, उसके बाद टेबल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल बैच 10, बैच 11, बैच 12, दिस विल बी द टेबल। एंड इन बैच 11 there will be there will be a table called as student ID, student name, what is the profession of that student, or what course has that student has been selected, something like that. So those columns will be there. Schema will be like the particular the main periodics you can say the database, the high endpoint of the database, it can be named. Schema is not mandatory, but it is better to have. For example, it will be have tuc, then tuc1, then tuc3. For example, if you'll create now sir, in the future they might create like tuc front end, tuc backend, tuc data analytics, tuc data scientist, something like that. If they have mobility to create, to store the information in a right way, they'll create the schemas. Okay, guys, any other questions? So Rohan, let me answer your question. RDMS and DBMS. DBMS is a whole concept. So DBMS is like a main thing. Inside that we do have relational database and non-relational database. Okay. So here in DBMS, we obviously do manage files and data, and RDMS is basically anything, but whatever you are going to use, MySQL, PostgreSQL, PL SQL, whatever it is, it should be an RDBMS. And in NoSQL, it will be the MongoDB or an DocumentDB, anything like that. So it's nothing but an subbit, and there are two types, RDBMS and non-relational database. Okay. Is that answers your question, Rohan? Yes, sir. Okay, perfect. Guys, any other question, or shall I proceed further? I'll wait for 1 minute if you want. Meanwhile, I'll have water. Okay, perfect. Then I'll go next. I'll go on the next slide. So now अभी आपने ये देखा कि ये टैबुलर फॉर्मेट में कैसा रहता है। अभी अपन इसको रिलेशनल मॉडल्स क्यों बोल रहे हैं? Abhi, you are saying no. Do you want to ask anything, or you are just saying you don't have any questions? So I'm assuming you don't have any questions. I'm proceeding. Okay. If you have, you can. Yeah. Okay. Okay. Got it. Thank you, man. Okay. So अभी आप अपन इसको रिलेशनल मॉडल क्यों बोल रहे हैं? ओके, ये रिलेशनल ही क्यों बोल रहे हैं? अभी फॉर एग्जांपल एक टेबल है। ओके, इसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर स्ट्रीट है, कस्टमर सिटी है और अकाउंट नंबर है। ये परफेक्ट सिनेरियो है फॉर अ सिंगल टेबल। जब भी आप प्रोडक्शन लेवल पे जाओगे तो वहां पे कैसा होगा? फॉर एग्जांपल आप अमेजोन के लिए काम कर रहे हो और एंड फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? मल्टीपल डेटाबेसेस रहेंगे। एक होगा कस्टमर डेटाबेस, दूसरा होगा प्रोडक्ट डेटाबेस, तीसरा होगा सेलर डेटाबेस। सो देयर विल बी मल्टीपल डेटाबेसेस। Okay, so in that case, we don't have that feasibility to store all the information in one table, right? For example, if you have to retrieve the data for customer ID named customer ID 1, whereas customer name is Sunil. So in that case, what will happen? It will take a lot of time to give the data because you have unnecessary column involved into it. There is no correlation between them as well. Okay, so in that case, what we'll do, we'll build some logical models. So here you can see we have customer ID, customer name, customer street, and customer city as an main customer table. Okay, and we have second table as an account table and the third table as an a depositor table. Okay, so what it will do now, here you can see for a customer ID, for every customer ID there should be an unique account number. करेक्ट, ऐसा कुछ होगा क्या? आप अगर बैंक में जाओगे तो बैंक वाला आपसे कहेगा क्या, सर आपका कस्टमर आईडी 123 है और आपके नाम सो एंड सो, फॉर एग्जांपल हियर रोहन है, और आपके लिए वो एक अकाउंट नंबर है जो अकाउंट अभी यूज करेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। सो हर एक यूजर के लिए अकाउंट नंबर यूनिक रहेगा। ओके, सो रिगार्डिंग दैट अकाउंट, उसके पास कितना बैलेंस है वो स्टोर करने के लिए अपन एक अनदर टेबल यूज करते हैं।
सो अभी ये दो टेबल में अपन अगर कोरिलेशन देखेंगे तो अकाउंट नंबर ये कस्टमर टेबल में भी प्रेजेंट रहेगा और इसमें भी प्रेजेंट रहेगा या फिर इसमें भी प्रेजेंट रहेगा. ओके, सो नाउ we can have one to one relation, we can have one to two relation, or we can have many to many relation. Okay, so here in this case you can see, right, customer id present in customer table, it can correlate with the depositor table where customer id is present, and here you can see the account number is here A101, so it can correlate with the accounts table. सो फॉर एग्जाम्पल अभी अपना एक यूआई पार्ट है और उस यूआई पार्ट में क्या करना है कि कस्टमर नेम्ड स्मिथ है और वो स्मिथ का क्या करना है अपन को, ए स्मिथ वाले का बैलेंस दिखाना है. ओके, सो अभी प्रोडक्शन लेवल में अपने पास तो 3 टेबल्स है. अगर आप एक कस्टमर टेबल को रेफर करोगे तो क्या मिलेगा कस्टमर टेबल से, अपन को कस्टमर आईडी मिलेगा. ओके, सो अपन क्या करेंगे फिर कस्टमर आईडी से अपन को क्या मिलेगा डिपॉजिटर टेबल में. सो कस्टमर आईडी इज एंडिंग विथ 3746. सो 3746 के अकॉर्डिंग अपन को क्या मिलेगा कि अकाउंट नंबर मिलेगा, वो क्या है A-215. ओके, सो अपन क्या करेंगे फिर A-215 को पिक करेंगे और उसका क्या बैलेंस है वो देखेंगे. A-215 इसका बैलेंस है 700. सो वी विल डिस्प्ले 700 एज एन अकाउंट बैलेंस ऑन द यूआई. Okay, so have you understood what is the difference between a single table and multiple table logical relations, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect, sounds good. Okay, let me go to, yeah, now this thing, database users. So initially when I explained, like there will be a developer, there will be an admin, there will be a user. सुनील, sorry Yeah. to interrupt. Yes. वो मल्टीपल टेबल वाला एक बार थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे? Okay, multiple table वाला. हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चन कैसे है कि अगर ये कस्टमर आईडी जो है ये बैकएंड से अपने को एपीआई में मिलेगा फ्रंट एंड साइड, करेक्ट राइट? करेक्ट ओके, फिर फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट गया है ये कस्टमर आईडी का, करेक्ट, तो ये जो अकाउंट नंबर फाइंड करने का प्रोसेस है वो सर्वर साइड ही होगा, सर्वर साइड ही होगा. राइट? मतलब सर्वर साइड पे ही वो डेटा होगा, वहीं पे चीजें क्या होगी, मतलब डेटा मैनिपुलेट होगा और वहीं से फिर दूसरा कोई रिक्वेस्ट आएगा. तो ये करेक्ट जो अकाउंट नंबर है, मतलब ये जो दूसरा टेबल है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा फ्रंट एंड साइड, करेक्ट करेक्ट राइट? करेक्ट. आई थिंक यही डाउट था सब लोग, कुछ लोगों को. अच्छा अच्छा. Okay. सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन दैट पॉइंट. सो अभी अपन को जो अकाउंट टेबल है और डिपॉजिटर टेबल है ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, करेक्ट? फॉर एग्जांपल अगर ये सर्वर साइड पे रहेगा तो ये इजीली भी हैकेबल रहेगा, कोई भी आके इसको हैक कर सकता है अगर ये सर्वर साइड पे रहेगा तो, सॉरी क्लाइंट साइड पे रहेगा तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अपन इसको एक डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं. सो यूआई से अपन एक इनपुट लेंगे, वो माइट भी कस्टमर आईडी रहेगा, जो भी यूनिक की अपन डिफाइन करेंगे वो माइट भी कस्टमर आईडी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर नेम रहेगा या फिर ओनली कस्टमर आईडी रहेगा और फिर कस्टमर नेम रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एप्लीकेशन यू आर यूजिंग. सो वही पार्ट अपन यूआई से फेच करेंगे और वो बैकएंड में जो भी एपीआई है एपीआई से अपन बैकएंड में देंगे. सो बैकएंड में अपन वो भेजते समय हम अपने क्वेरी डालेंगे कि उस क्वेरी में डिफाइन रहेगा कि ये कस्टमर आईडी अपना ये है, उसके रिलेटेड अपन को अकाउंट नंबर चाहिए और अकाउंट नंबर का बैलेंस चाहिए. सो वो जाके सर्वर साइड पे देखेगा, उसका बैलेंस लेगा और फिर वो क्लाइंट साइड पे आके वो डिस्प्ले करेगा. सो फ्रॉम द फ्रंट एंड whatever user going to query or whatever user going to access this information, he don't have any direct access to account and depositor table, he only have access to the customer table. So अगर कुछ data breach होगा, कुछ security का scenario होगा, in that case what will happen, only the customer IDs or customer name, this information will be leaked, their account number it will be still private and the respective balance it will be still private. I hope it makes sense. Okay. Okay guys, any other question? Okay, perfect. I'm assuming it as okay. Okay, so Hello, sir. Okay, perfect. Okay, can you go back to the slide, sir? Okay, Here, sir, by customer ID, we can access the account table and the depositor table. correct. Okay, sir. Means I want to access the customer name by the account number. Should I go to the depositor table? And in there is no not, relation.
that is not required, right? If you just want customer name or customer street, customer address kind of a street or city, you do have that table on itself, right? You don't have to refer the depositor table or an account table. As much as needed, we should not include that. Correct. If it is not required, if the user who is going to use the UI or an application user, if he doesn't want to know what is the account number or what is the balance, then there is no make sense to using depositor and account table. Then you can run a standalone single query on this table, where you can say like select customer name from customer table, where customer ID equal to ending with 3746, something like that. That will create like how we can query the table, and those part will cover up later. But yeah, if it is a customer name or customer address is required, then we need not address the depositor and account table. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, I'll proceed further. So we do have database users, as I explained earlier, right? We have multiple users. So अभी अपन database यूज कर रहे, तो अभी obviously उसमें roles होंगे. So कोई एक बंदा होगा वो security part को handle करेगा, कोई एक बंदा होगा वो data store करने के लिए handle करेगा, कोई एक बंदा होगा जो access related जो भी सर्वर पे क्या जाना चाहिए, client पे क्या जाना चाहिए, वो जो भी token आ रहा है वो authentication करना, वो सब पार्ट है, वो डिफरेंट डेटाबेस यूजर्स हैंडल कर सकते हैं. सो अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, अपने पास इतने वैरायटी के एप्लीकेशन यूजर्स है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स. सो व्हाट दे विल डू इज, इफ यू हैव टू मेक एनी चेंज, फॉर एग्जांपल देयर विल बी वन यूजर कॉल्ड एज रोहन पांचाल, एंड अभी उसका अकाउंट क्रिएट हो गया है समझो, और उसका प्रोफाइल क्रिएट हो गया है समझो. अभी क्या हो गया, उसके जो भी इनिशियल नेम है ROHAN, उसके जगह पे क्या हो गया, RONAN हो गया. अभी क्या करना है, उसको डेटा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि RONAN रोनन it is not an correct name. He want to have an ROHAN. So in that case it will go to the application programmer. So application programmer वो क्या करेगा, तो वो अपडेट क्वेरी रन करेगा. So if you know, right, CRUD applications, so update is one of the part of CRUD. So update query run क्या करेगा, update whatever the customer table where student name equal to RONAN and updated as an ROHAN. So वो टाइप का काम, जो भी डेटा मॉडिफिकेशन करना है, DML is nothing but a data modification language or an manipulation language. So ये जो भी काम करना पड़ेगा वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर करेगा. ओके, उसके बाद अपने पास है सोफेस्टिकेटेड यूजर्स. वो सोफेस्टिकेटेड यूजर क्या करेगा, वो डेटाबेस का अपना जो भी क्वेरी लैंग्वेज है उस पर क्वेरी करेगा. फॉर एग्जांपल वो इनिशियल डेवलपर है, और यू कैन से एन UI डेवलपर वगैरह कुछ है, वो क्या करना चाहता है, सिर्फ खाली डेटा उसके हिसाब से जो भी फंक्शनलिटी उसको बिल्ड करना है, उसके हिसाब से वो खाली देखना चाहता है कि मेरे पास डेटा क्या क्या है, और मैं UI पे कौन से कॉलम लाऊं, कौन से कॉलम शो करना चाहिए. वो जो भी टेस्टिंग, इनिशियल जो टेस्टिंग करते हैं ना, वो उसको बोलते हैं सोफेस्टिकेटेड यूजर. उसके बाद होते हैं स्पेशलाइज्ड यूजर. ओके, सो स्पेशलाइज्ड यूजर क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशल एक्सेस रहता है. तो उन स्पेशल एक्सेस में क्या करते हैं, वो क्वेरी रन कर सकते हैं. वो जो भी डेटा है, अगर ये इनिशियली प्री प्रोडक्शन स्टेज में है यानी कि डेवलपमेंट स्टेज में है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, उसको DML करना पड़ेगा. तो इन दैट केस ही डू हैव एक्सेस ऑन द बोथ रोल्स, एप्लीकेशन एज वेल एज सोफेस्टिकेटेड यूजर्स. ओके, एंड उसके बाद लास्ट रोल है अपने पास नाइव यूजर. नाइव यूजर यानी वो क्या रहता है, वो एक ऑटोमेटेड यूजर रहता है. फॉर एग्जांपल, अभी ये एप्लीकेशन प्रोडक्शन में गया, एक यूजर आया, वो यूजर क्वेरी कर रहा है, और वो कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है अपने डेटाबेस के पास. सो वो रिक्वेस्ट क्या करेगा, अभी अपन को एक सिक्योरिटी लेयर मेंटेन करना पड़ेगा. अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ना कि फॉर एग्जांपल उसको सिर्फ कस्टमर के लिए विजिबिलिटी रहेगा, सिर्फ यहाँ पे विजिबिलिटी रहेगा उसको, ये और ये उसको विजिबिलिटी नहीं रहेगा. तो इसके अंदर में क्या होगा, एक नई यूजर, एक सिस्टम जनरेटेड ID और टोकन, यू कैन से, आई थिंक यू गाइस आर फैमिलियर विद API. so it will be something called as a token. It will generate, and the token will act as a naive user. Now that token or that naive user has an access to depositor and account table. So he can access the sensitive data. He'll come back here and he will give whatever the sensitive data he wants, and it will be shown on the UI. So that is the purpose of naive user. Naive user, it is kind of a system user. It will be generated in between system.
Okay, guys. Any questions on this part? Sir, what is DML here? DML is a data manipulation language. फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने ये टेबल एक्सप्लेन किया ना मैंने, अभी ये टेबल है, ये कस्टमर आईडी है, जॉनसन है, ये उसका एड्रेस है। अभी क्या होगा, अभी जॉनसन ने फॉर एग्जाम्पल उसने सिटी चेंज कर दिया, अभी वो पालो अल्टो में नहीं रहता, वो मे बी सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है, तो उसको एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट वो कैसा करेगा, तो इन सीक्वल में अपने पास DDL, DML, DCL एंड TCL। DML is database manipulation language. DCL is a data control language. DDL is a data definition language, and TCL is a transaction control language. So DML से अपन यूज करके ये अपडेट कर सकते हैं। वो अभी अपन वो आगे सीक्वल में कवर करेंगे, पर अभी मोटा मोटा आप अंडरस्टैंड कर लो कि DML मतलब अपन को कुछ तो अपडेट करना है उसमें, उसका एड्रेस हो गया, उसका नेम हो गया, फिर आईडी जो भी है वो अपन अपडेट करने के लिए DML यूज करते हैं। ओके, इज दैट आंसर्स योर Okay. क्वेश्चन? Yes, yes. ओके। और ये सबका जो सिंटैक्स है दैट इज सेम, मतलब TCL, DML जो सब है उसका। ना सिंटैक्स उसका डिफरेंट होगा, अच्छा, लिटिल बिट, Okay. ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट वो आगे कवर करेंगे आप। Okay. ओके, एज ऑफ नो टिल दिस पार्ट एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, clear. Hello, sir. या गुड। Yes, sir, can you repeat that? What exactly the sophisticated users do? Yes, what Okay. is the function of that users? ओके ओके, सो अभी क्या होता है प्रोडक्शन में, देयर विल बी टू काइंड ऑफ यूजर्स। एक रहेंगे वो नॉर्मल डेवलपर रहेंगे, और एक होंगे आर्किटेक्ट काइंड ऑफ डेवलपर। उनके लिए क्या रहना चाहिए, उनके लिए पूरा जो आर्किटेक्चर डिफाइन करना है वो लेवल का एक्सेस रहना चाहिए, कि उनको डेटा विजिबल रहना चाहिए, और वो डेटा मैनिपुलेट भी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ तो टेस्ट कर रहे हैं और कुछ तो डेटा करेक्ट इनकरेक्ट है, वो डेटा उसको करेक्ट करना है, तो स्पेशलाइज्ड यूजर ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर के पास जाके वो नहीं बोलेगा कि अरे मेरा ये डेटा गलत है या फिर ये कुछ तो इश्यू है, आप कर दो। अगर ये सोफेस्टिकेटेड यूजर के पास जाएगा तो सोफेस्टिकेटेड यूजर के पास वो एक्सेस ही नहीं है उसको DML रन करने का, उसको एप्लीकेशन के पास ही जाना पड़ेगा। बट स्पेशलाइज्ड यूजर ही डू हैव एन एक्सेस फॉर दिस टू रोल्स, सोफेस्टिकेटेड एज वेल एज एप्लीकेशन। Okay, okay, sir. गॉट इट? Yes, yes, thank you. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Yeah, I think I'll take it as a no. That is your introduction to DBMS part. I hope everyone is clear. Or anyone want me to explain something from here? Or you don't have, or you didn't understood anything? I might have gone first. That's my habit. But yeah, someone, if you have any question, yeah, please come on and speak. It is not like in first go you'll understand everything, but yeah, आप क्वेश्चन पूछोगे तो उतना आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। Okay, then yeah, I'll go ahead and I'll introduce SQL to you. So अपना SQL क्या आता है, एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये IBM ने डेवलप किया था, आई थिंक इन 1980s और समवेयर। सो 1980 में कुछ तो उन्होंने डेवलप किया था, और वो तभी से चलते आ रहा है। तो उसमें अभी नए नए वो मॉडिफिकेशन करते रहते हैं कि ये ऐसा सिंटैक्स होना चाहिए, ये वैसा सिंटैक्स होना चाहिए। तो वो होता रहेगा, वो टाइम बाय टाइम न्यू वर्जन आता रहेगा, न्यू वर्जन अपडेट होता रहेगा। वो ये होगा अपना SQL क्वेरी लैंग्वेज। सो वॉट एवर डेटा हैज बीन स्टोर्ड इनटू योर डेटाबेस, तो अभी वो डेटा को देखने के लिए अपन को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज चाहिए, ताकि आप उसको जाके क्वेरी कर सके और डेटा रिट्राइव कर सको। तो उसको अपन बोलते हैं एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, इट विल बी ओनली यूज्ड इन RDBMS. It will not be used in non-relational databases. Okay, so there will be multiple vendors. अपन क्या कह सकते हैं फिर, मल्टीपल वेंडर्स बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, MySQL है। सो डिफरेंट वेंडर्स है। उन्होंने क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और ये DBMS का जो भी कंसेप्ट IBM ने स्टैंडर्डाइज कर लिया, उनके ऊपर उन्होंने अपना अपना एक इन हाउस एप्लीकेशन बना दिया। और वो इन हाउस एप्लीकेशन अभी कोई प्रोडक्शन में वर्क, कोई यूजर प्रोडक्शन में रन करता है। ओके,
ओके सो अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, वी हैव DDL, DML, TCL and DCL. So DDL is nothing but a data definition language and this one is a data manipulation language. So data definition में क्या करना है अपन को अभी टेबल क्रिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल अभी अपने बैकएंड में, अभी अपन तो बैकएंड सीख रहे हैं ना, सो बैकएंड में कुछ टेबल ही नहीं है. अपन को एक रिक्वायरमेंट ऐसा है कि भाई अभी अपन को चाहिए कि कुछ एक यूजर्स बोल के एक टेबल क्रिएट करना है कुछ डेटाबेस में. सो उस समय अपन को एक DDL आना चाहिए. सो वो एक सिंटैक्स रहेगा कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और उसमें अपन को कॉलम नेम डिफाइन करना पड़ेगा और कॉलम नेम का उनका डेटा टाइप. फॉर एग्जाम्पल अपन ने जावास्क्रिप्ट में सीखा होगा कि इंटीजर कॉलम इंटीजर रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, बाइनरी रहेगा. So उस kind there will be some types along with, while defining the table you should define the types as well. Okay, that will be the core definition part. Table creation part, you can say table creation and table maintenance part is nothing but an DDL. उसको क्रिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलेगा कि मेरे को और एक कॉलम ऐड करना है टेबल में. ओके एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, अभी फिलहाल 2 ही कॉलम है उसमें. अभी ये रिक्वायरमेंट ऐसा है कि स्टूडेंट का एड्रेस भी अपन को सेव करना है. तो आप पूरा टेबल डिलीट कर सके, फिर से क्रिएट करना और फिर से उसमें डेटा लोड करना, ये पॉसिबल नहीं है ना. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक अल्टर बोल के कमांड रहता और एक सिंटैक्स रहता, वो अल्टर सिंटैक्स यूज करना. तो उससे क्या होगा कि अल्टर बोल के वो टेबल नेम और जो भी न्यू कॉलम अपन को डालना है वो कॉलम अगर अपन डालेंगे तो उसी टेबल में एक न्यू कॉलम क्रिएट होगा स्टूडेंट एड्रेस बोल के. दैट इज अ DDL इन सिंपल वर्ड्स. कुछ भी टेबल रिलेटेड डेफिनेशन आपको करना है, क्रिएट करना है, अल्टर करना है या फिर टेबल डिलीट करना है तो होगा DDL. एनी डाउट्स इन DDL guys? I know you might not have understood the syntax. We're going to cover it later. But overall, like on the basic level, like what is the purpose of a DDL? You understood, right? Yes, sir. Okay, perfect. So let me explain the DML. I think DML I have explained it earlier, right? So if you want to modify some records, so if I gave an example of a Rohan, right, where the spelling of his name has been mentioned initially as an RONAN, but he want to update it as an ROHAN. So how we can do it? We can use the modify functionality. Modify is nothing but an update. Okay, so you can use that update functionality and you can run the query or the particular syntax on the table, it will get updated. Okay, now we do have requirement like we do have new users into the table. For example, Abhi is there and he is not part of the table as of now, and we want to insert a record for Abhi. Like अपन को अभी का नेम डालना है, अभी का एक कस्टमर आईडी, अभी का एक स्टूडेंट आईडी रहेगा और अभी का एक एड्रेस रहेगा. तो अपन को वो डालना है नए से. तो उसके लिए क्या करना है, एक इंसर्ट बोल के कमांड रहता है, तो वो इंसर्ट कमांड अपन को रन करना पड़ेगा. और उसके बाद अभी डिलीट कमांड एक है. सो डिलीट क्या है, अभी अपने पास रोहन जो है वो नो मोर इन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर बैंक. सो अभी वो बैंक का अकाउंट उसने क्लोज कर दिया. अभी फिलहाल तो अपने टेबल में रोहन बोल के एक रिकॉर्ड है और उसका इंफॉर्मेशन है. अभी उसने बैंक क्लोज कर दिया तो अपन को एक डिलीट कमांड रन करना पड़ेगा. तो डिलीट कमांड रन करने के बाद जो भी रोहन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल उसका स्टूडेंट आईडी या कस्टमर आईडी और उसका एड्रेस, वो सब डिलीट हो जाएगा. दैट इज नथिंग बट योर DML. Does it make sense? You guys understood? Yes, sir. But Yes, sir. Yeah. please tell me one thing again. Mhm. That in the part of DML we have also delete, and in the part of DDL also we have a delete, right? Correct. So suppose we have to delete one table or one data of a particular person, Mhm. then which we will use, DDL or DML? In name you can see, right, manipulation means you are working on the data level. If you are modifying something on the record, that time you will use this delete. ओके एंड फॉर एग्जांपल अपने पास एक रिक्वायरमेंट है कि एक एड्रेस बोल के कॉलम है, वो नो मोर रिक्वायर्ड है, कोई बिजनेस पर्सन वो कॉलम को यूज ही नहीं कर रहा है. तो उस समय अपने को टेबल लेवल में चेंजेस करना है, ये डेटा लेवल में चेंज करना है. यहाँ पे डेफिनेशन है तो ये टेबल लेवल पे है, ये मैनिपुलेशन है, मतलब ये जो भी उनकी उसके अंदर डेटा स्टोर्ड है या फिर जो भी रिकॉर्ड्स है ये उसके ऊपर फंक्शन करता है. समझ गया? Okay, yes.
Okay. मतलब कैसा शायद आई मे बी रॉन्ग, सुनील मुझे करेक्ट कर देना। Mhm. देखो फ्रंट एंड से जब हम CRUD एप्लीकेशन करते हैं तो कोई नया ऑब्जेक्ट डेटाबेस में ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो वो सारी चीजें आती है DML में, राइट। अब देखो डेटाबेस में कोई डेटा पड़ा है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे पर्सन्स का डेटा है, उसमें एक की है सेक्स, राइट। अब फिर जिस कंपनी के लिए हम, जिस प्रोडक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई जेंडर बेसिस पे हम क्या नहीं करेंगे, चीजें नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो सेक्स जो है ना, जेंडर है, सेक्स छोड़ दो, जेंडर है, जेंडर की हमें डेटाबेस में नहीं चाहिए। तो सारे ऑब्जेक्ट से क्या होगा, वो जेंडर की हटा देंगे, राइट। तो करेक्ट ना, Yeah, correct. Yes. राइट। तो उस केस में आता है DDL। मान लो आपने एप्लीकेशन बना दिया, आपके पास 50 ऑब्जेक्ट है, राइट। कोई आपने एप्लीकेशन करके 50 ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर हुए, फिर बाद में जाके रियलाइज हुआ कि हर एक ऑब्जेक्ट में कोई एक की चाहिए थी अपने को, राइट। तो उस केस में भी आएगा DDL, राइट। Yes, you're right. क्लियर है? Yep. So mainly for your crude purpose. So for create we use DDL, and for RUD, so where we are going to read, it will be the select statement that is not part of this DDL or DML. That is a simple statement. And for update and delete, that will be the DML. So main part are DDL and DML from the US perspective. Okay. Okay, guys. If it is clear, then yeah, we'll up for question answer sessions. If you guys have any, and it will be done for today. Sir, what is the difference between relation and non-relation database? ओके जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, रिलेशनल बोले तो क्या होगा, इसमें एक टेबल होगा। लेट मी गिव दिस एग्जांपल। ओके सो ये अभी टेबल है जिसमें प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है, एक मैन्युफैक्चरर है। तो रिलेशनल डेटाबेस बोले तो क्या रहेगा, अभी ये 4 कॉलम अपने डिफाइन करे, तो उस 4 कॉलम के रिलेटेड डेटा इसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं होगा, ये आपको एरर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट नेम बोल के डिफाइन किया तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट नेम वहां पे रहना ही चाहिए, प्राइस बोला तो कुछ ना कुछ प्राइस वहां पे रहना चाहिए, कैटेगरी बोला तो कुछ ना कुछ कैटेगरी रहना चाहिए, मैन्युफैक्चरर बोला तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरर रहना ही चाहिए। नॉन रिलेशनल में क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल एक की वैल्यू पेयर डेटाबेस है, तो क्या रहेगा, एक फील्ड होगा जो यूनिक रहना चाहिए, जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहना चाहिए, और वो रिमेनिंग कुछ फील्ड रहेंगे उसमें वैल्यू, उसमें कुछ डेटा रहे या ना रहे कुछ मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल अपन ने प्रोडक्ट नेम बोल के अगर यूनिक रिकॉर्ड लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट नेम होना ही चाहिए। प्राइस वो देगा या नहीं देगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कैटेगरी वो देगा या नहीं देगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर देगा या नहीं देगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना, या फिर और एक बार एक्सप्लेन कर दो। समझ गया sir. सर हेलो, ये अगर इसमें प्राइस कैटेगरी अगर नल रखे तो मतलब सेम टेबल में भी वो नॉन रिलेशनल होगा या कैसे? नहीं अब अगर अपन नल रखेंगे तो वो रिलेशनल होगा ना। अभी मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम, ओके जेसन फॉर्मेट के साथ सब लोग ओके रहेंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, जेसन में एक एग्जांपल देता हूँ, सिक्वल और नो सिक्वल, आप नो सिक्वल में। सो वहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल इट इज एप्पल, then we have price and there should be something 6999. We have category, and category something will be, I'll say as a cell phone, okay, and there will be manufacturer,
Okay, manufacturer, let me put it as an apple only. Okay, so अभी एग्जांपल हो गया. Sir, अभी I am not able to see the JSON file. you are not able to see JSON file. Okay, so you guys are now able to see the notepad screen. Yes. ओके, सो फॉर एग्जांपल अपने पास ये डेटा है. ओके, सो सिक्वल में क्या होगा, रिलेशनल डेटाबेस में अभी जो भी ये प्रोडक्ट नेम है, अभी ये आप ये समझो कि ये मेन डेटा है. ओके, सो अभी जो भी एक की फील्ड है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर, ये आपको देना ही पड़ेगा. अगर क्या करेंगे, अभी ये प्रोडक्ट नेम बोल के इसको मैं देता हूँ, इसको दूंगा मैं सैमसंग, और अभी इसका मुझे प्राइस कुछ नहीं रखना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको नल या फिर कुछ भी नहीं दूंगा, ऐसे ही रखूंगा मैं. ओके, कैटेगरी भी मेरे को कुछ नहीं देना है, तो मैं कैटेगरी भी ऐसा रखूंगा, और मैन्युफैक्चरर में मैं कोरिया कुछ तो डाल दूंगा. ओके, सो ये रहेगा अपना RDBMS. ओके, यहाँ पे अगर आपको प्राइस नहीं देना है या फिर कैटेगरी नहीं देना है, फिर भी अपन को वो कॉलम मेंशन करना ही पड़ेगा. ओके, सो वेर एज नो सिक्वल, अगर अपन को ये सेम एग्जांपल अगर नो सिक्वल में देखना है ना, सो लेट मी ऐड इट एज एन relational SQL and non-relational SQL. ओके, सो नॉन-रिलेशनल SQL में क्या रहेगा, अभी मेरे को प्रोडक्ट नेम एप्पल था, एप्पल देना था, मैंने वो दे दिया. प्राइस मुझे मालूम था 69,999, वो मैंने दे दिया. कैटेगरी सेलफोन था, मैन्युफैक्चरर एप्पल था, वो मैंने दे दिया. अभी सैमसंग के केस में मुझे सिर्फ प्रोडक्ट का नाम मालूम है और मुझे सिर्फ मैन्युफैक्चरर मालूम है, तो फिर ये प्राइस और कैटेगरी जो मुझे सिक्वल में मैंडेटरी था देना, वो मुझे नो सिक्वल में मैंडेटरी नहीं है. ये प्राइस और उसका मैं मेंशन ही नहीं करूंगा. ओके, अभी मेरे पास नो सिक्वल में अभी और एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक ब्रांड है. ओके, उसका ब्रांड प्रोडक्ट नेम है, लेट मी टेक यू Xiaomi. ओके, Xiaomi, अभी मेरे पास उसका प्राइस भी मालूम नहीं, मुझे कैटेगरी भी मालूम नहीं, उसका मैन्युफैक्चरर क्या है वो भी मालूम नहीं, बट उसका कंट्री बोल के मेरे को कुछ तो मालूम है, कंट्री का इंफॉर्मेशन. ओके, so it will be China. Okay, there will be one more product. Let me give product name as an what, let me take it as an Redmi. अभी उसके लिए क्या है, अभी मुझे कंट्री मालूम नहीं उसका, मुझे ना मैन्युफैक्चरर मालूम है, ना उसका प्राइस मालूम है. फॉर एग्जांपल अभी इसका मैं रीजन मालूम है कि भाई ये ब्रांड कौन से रीजन से ओरिजिनेट होता है. फॉर एग्जांपल ये एशिया रीजन से ओरिजिनेट होता है, तो मैं एशिया डाल दूंगा. ओके, अभी नो सिक्वल में अपन को क्या कुछ तो कॉलम स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ रहा है क्या, नहीं करना पड़ रहा है. अभी फॉर एग्जांपल मुझे वो मैन्युफैक्चरर का इंफॉर्मेशन अपने पास है, तो अपन वो मेंटेन कर रहे हैं. पर सिक्वल में क्या होगा, अभी तुम्हारे पास कंट्री का इंफॉर्मेशन है, किसके लिए, Xiaomi के लिए, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट नेम डालना पड़ेगा Xiaomi, प्राइस नल, कैटेगरी नल, मैन्युफैक्चरर नल, और एक वन मोर कॉलम ऐड पर करना पड़ेगा यहाँ पे कंट्री बोल के. ओके, एंड इट विल बी चाइना. अभी यहाँ पे ऐड करें तो रिलेशनल है ना, तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो ऐसा कंट्री कॉलम बोल के एप्पल के लिए फिर USA, तो ऐसा कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा. ये मतलब सर कॉलम अगर का मेरा जो भी कॉलम यूज करना पड़ेगा वो मैंडेटरी है रिलेशनल में, नॉन रिलेशनल में वो मैंडेटरी नहीं है. इज दैट क्लियर? मतलब सर भी अगर नॉन हमारे पास रिलेशनल का. किसी ओके. प्लीज या गुड गुड, समवन और उसके. बट सर मतलब अगर किसी पर्टिकुलरली पर्सन का अगर हमारे पास कोई एक इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो मतलब हम वो सिक्वेल में नल से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं. डिफाइन कर सकते हैं. ओके, मतलब वो कंप्लीट करने के लिए नल का डिफाइन करना.
नो सिक्वल में वही एडवांटेज है कि आप अगर अपने पास कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अपन कुछ तो एक रिस्पॉन्स पेज वगैरह दे रहे हैं, वहाँ पे यूजर कुछ फीडबैक देगा, फीडबैक ने अपन कुछ पर्टिकुलर कॉलम दे दिए कि नेम है, उसका जेंडर है, उसका एज है, और उसके बाद में फीडबैक है। अगर कुछ कुछ यूजर के लिए वो एज, वो जेंडर और उसका एज जो है उसको डिफाइन ही नहीं करना, या फिर उसको उसका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देना, तो फिर वो नहीं दे सकता। तो उसके केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर रिलेशनल सिक्वल यूज कर रहे तो वो कॉलम अपन को मैंडेटरी रखना पड़ेगा, और अगर उसने कुछ इनपुट नहीं दिया तो अपन को नल डालना पड़ेगा। ओके, वेर एज इन नो सिक्वल वी कैन डायरेक्टली स्टोर, लाइक जिसने जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसको एक जेसन या एक इनलाइन जेसन में अपन स्टोर करके लेंगे। किसने अगर ऑल इंफॉर्मेशन दिया, नेम एज जेंडर और उसका फीडबैक, तो वो एक जेसन में स्टोर होगा। किसने अगर अपना सिर्फ नेम और फिर फीडबैक दिया तो वो अलग एक जेसन में स्टोर हो जाएगा। तो उसमें वो कॉलम नेम वगैरह, वो नल वगैरह जो भेजना है वो मैंडेटरी नहीं रहेगा। मतलब जहाँ पे हम SQL में जिसको हम टेबल कर रहे हैं, नॉन SQL में उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। करेक्ट। Guys, does it make sense? The difference between relational and non-relational? यस सर। ओके, सो अभी अपन को क्वेश्चन आ गया होगा कि अभी भाई नल डाल के भी तो वर्क हो रहा है ना, तो अपन फिर नल डाल के क्यों नहीं एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे? नल डाल के भी तो वर्क हो रहा है, तो वहां पे भी करेंगे, वहां पे भी करेंगे। तो फिर क्या होगा, सो अभी भी जो जो भी कस्टमर वो डेटा फेच कर रहा है, तो अपने यूआई पे क्या होना चाहिए कि जल्द से जल्द उसका रेस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसके लिए वो जो रिट्राइवल स्पीड है ना, वो बहुत मैटर करता है। सो रिलेशनल सिक्वल में रिट्राइवल स्पीड बहुत ज्यादा रहता है, नॉन रिलेशनल सिक्वल में रिट्राइवल स्पीड थोड़ा कम रहता है। दिस इज द रीजन, इफ अपन को कॉलम का जो भी कॉलम साइज है, फॉर एग्जांपल एक टेबल में 10 कॉलम है, अपन को मालूम है कि जो भी रेस्पॉन्स है अगर वो 10 कॉलम में ही आने वाला है, एडिशनल 11th या 12th कॉलम नहीं लगेगा, तो इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर रिलेशनल सिक्वल। और इन अदर केस अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं कि अरे यार कोई कोई कौन सा भी इंफॉर्मेशन देगा, जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो अपन को स्टोर करना है, तो इन दैट केस ही विल गो फॉर द NoSQL डेटाबेसेस वेयर वी डोंट नो लाइक व्हाट विल बी द कॉलम, हाउ मेनी कॉलम्स। अभी एक केस होगा कि अभी इस समय अपने पास 10 कॉलम है, पर ऐसा होगा कि जो अपना प्रोडक्ट बिल्ड होता जाएगा, मे बी इस समय के बाद 11 13 12 कॉलम रहेंगे। तो in that case NoSQL will be useful. In SQL, then again that will be hectic, like we have to run the alter command, alter on table, add new column, then add the value for that column. So वैसा लिखना पड़ेगा. So depending upon the use case, it will be used. Guys, any questions? सर सर फॉर एग्जांपल जैसे कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम्म। कुछ डाटा है जो कंपलसरी नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है, तो फिर वो डाटा नॉन स्केल में स्टोर होगा क्या? आपको क्या डिफाइन करना है उसके ऊपर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी नो द फील्ड्स विच यू वांट टू हैव इन फॉर्म। कुछ भी एक फॉर्म के लिए आप उनको जो आपको जो भी फील्ड चाहिए वो फील्ड बता दो मुझे। नेम, ईमेल आईडी, नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट। जेंडर, मोबाइल नंबर, देन एज। ओके, सो अभी जो भी अपना फॉर्म है, अगर वो फॉर्म में अपन को ऐसा है कि इसका रिट्रावल स्पीड क्या चाहिए। ओके, आपको अगर रिट्रावल स्पीड फास्ट चाहिए तो इट विल बी रिकमेंडेड कि आप सिक्वल यूज कर लो। अभी कोई नेम देगा तो नेम रख लो, कोई एज देगा, जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो मैंडेटरी रख लो, नॉन मैंडेटरी को मत ले लो, वहां पे नल डाल दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम लेगा सुनील, कुछ तो रहेगा sunil@gmail.com, something like that, and gender will be male, mobile number will be something 123, and the age will be something like 26. Okay, what is your good name? The question who asked, what is your name? Sorry. AMREEN।
AMILL AMREEN AMREEN. Yes. Okay, so this is your name and it will be your, अभी तुम्हारे केस में क्या रहेगा, आपको ईमेल आईडी नहीं शेयर करना है तो आप नहीं शेयर करेंगे, तो या फिर क्या सिक्वल में क्या होगा, एज अ नल बोल के स्टोर होगा। पर जेंडर है, जेंडर आपको शेयर करना है तो आप जेंडर शेयर कर दिया एज एन फीमेल। मोबाइल नंबर है, अगेन इट इज एन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यू डोंट वांट टू शेयर। एज भी है, आपको ये शेयर नहीं करना, तो ये हो जाएगा। ओके अभी ये सीक्वल में ऐसा स्टोर करेंगे। अभी क्या करेगा, ईमेल फील्ड है, ये जो ईमेल फील्ड है, मोबाइल नंबर फील्ड है, एज फील्ड है, अपन तो ब्लैंक पास कर रहे हैं, पर जो भी ये अभी डेटाबेस में स्टोर होगा उसना कुछ ना कुछ तो वो साइज लेगा ना डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। मे बी 1 KB, 2 KB, 1 बाइट, 2 बाइट, जो भी है वो साइज लेगा डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। अभी जो भी बिजनेस पर्सन है उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि अपन को डेटा स्टोर करने के लिए कॉस्ट कम करना है या अपन को रिट्राइवल स्पीड चाहिए। एग्जैक्ट जो भी रिट्राइवल स्पीड है अपन को फास्ट चाहिए, तो वो केस में क्या करेगा, यहाँ पे स्टोरेज इंक्रीज होगा, स्टोरेज इंक्रीज होगा तो उसका उसको कॉस्ट लगेगा। नो सिक्वल में क्या होगा, अभी यही सेम इंफॉर्मेशन अगर नो सिक्वल में अपन ने डाल दिया तो ये ईमेल नॉट रिक्वायर्ड है, एज और मोबाइल नंबर दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इन दैट केस क्या होगा, स्टोरेज लेस लगेगा, स्टोरेज लेस लगेगा, सो इसका कॉस्ट लेस हो जाएगा। बट इन दिस केस क्या होगा, रिट्राइवल स्पीड जो है, retrieval speed will be less, and here retrieval speed more। ओके सो अभी अपन को बैकएंड से अगर डेटा लेना है तो अपन क्या करेंगे, अभी ये प्री डिफाइंड कॉलम है, अगर मैं बोलूंगा कि मुझे बैकएंड से अमरीन का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, बैकएंड में आके नेम पे जाएगा, पहले नेम देखेगा, पहला सुनील है, वो ईमेल और जेंडर को रीड नहीं करेगा, नेम देखेगा सुनील है, यहाँ पे नेम देखेगा अमरीन है। ओके अभी उसके बाद क्या चाहिए उसको, अपने को जेंडर चाहिए था उसमें, तो क्या देखेगा, अमरीन का जेंडर क्या है, फीमेल है, तो वो यप बोल के वो रिट्राइव कर देगा। सो इसमें कितना इटरेशन लगा अपन को, सिर्फ 2 इटरेशन लगा, करेक्ट। अभी इसमें क्या होगा, नो सिक्वल में अपन को जो भी डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं बोला, मैंने पूछा कि अमरीन का जेंडर क्या है वो बता दो, इन दैट केस क्या होगा, वो नेम आएगा, यहाँ पे रीड करेगा, ओके दिस वन इज द फर्स्ट इन लाइन जेसन, नेम है सुनील, उसका ईमेल है ब्ला ब्ला ब्ला, जेंडर है ब्ला ब्ला ब्ला, मोबाइल नंबर, एज, और उसके बाद यहाँ पे आएगा अमरीन, नेम बोल के अमरीन। ओके तो अभी उसको पता चल गया कि ये अमरीन का डेटा है और उसका जेंडर है फीमेल, सो फिर ये फीमेल देगा। अभी इसमें क्या होगा, अपन ने मैक्स टू मैक्स 2 या 3 ट्रांजेक्शन किए, पर इसमें अपन को हर एक कॉलम रीड करना पड़ रहा है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग रिलेशनल डेटा। इट विल, उसके वजह से क्या हुआ, स्पीड कम हो गया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन ने नेम डिफाइन कर दिया अमरीन, तो इसके लिए उसको ईमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर, एज, ये कुछ भी देखना नहीं पड़ा, वो डायरेक्टली नेम देखा सुनील, नेम देखा अमरीन, ओके नेम मैच हो गया तो वो जेंडर रिट्राइव कर लिया। यहाँ पे उसको सभी देखना पड़ रहा है, नेम देखना, ईमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर, एज, सभी करके उसको देना पड़ेगा, सो रिट्राइवल स्पीड विल बी मोर। सर एक क्वेश्चन है, इट शुड बी लेस एंड दिस शुड बी मोर। या गुड। सर अभी जैसे रिक्वायरमेंट है इसलिए वो सिर्फ दो चीज चेक कर रहा है, राइट? करेक्ट। तो बट सर अगर सपोज एक टेबल फॉर्मेट है जिसमें उसको सभी जो डेटा है वो शो करना है, हम्म उसमें तो सर जो सीक्वेल है उसकी रिट्राइवल स्पीड तो सर लेस रहेगी ना, मतलब जो जेसन के नो एसक्यूएल के पार्ट से। करेक्ट करेक्ट। तो सर वहाँ पे रिट्राइवल स्पीड कैसे, फिर मतलब ये दोनों मतलब एक्सचेंज होती रहती है या फिर हमेशा सर जो रिलेशनल डेटाबेस है उसकी नहीं रिट्राइवल स्पीड लेस ही रहेगी? नहीं, अभी क्या जो भी अपन, जो भी आर्किटेक्चर रहेगा ना, वो जो भी आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा जो भी आर्किटेक्ट है, तो वो इनिशियली उसको डिसाइड करना पड़ेगा, उसको या तो सिक्वल यूज करना है या फिर नो सिक्वल यूज करना है। ओके अभी उसके सिनेरियो में अगर हर एक सिनेरियो में ऑल कॉलम डिस्प्ले करना है तो वो नो सिक्वल के लिए जाएगा।
कि मुझे हर बार जब भी एपीआई कॉल आएगा तब मुझे कभी जेंडर नहीं दिखाना या फिर कभी मोबाइल नंबर नहीं दिखाना, हर बार मुझे हर एक फील्ड ही दिखाना है। तो इन दैट केस वो जो भी आर्किटेक्चर है उसमें वो नो सीक्वल को डाल देगा। अभी कुछ आर्किटेक्चर में डिफाइंड है कि सम पर्टिकुलर पेज पे सम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही चाहिए। अभी जो भी फॉर्म का पेज है उस पे नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, जेंडर चाहिए, तो वो खाली सिर्फ 3 ही कॉलम चाहिए, तो फिर वो सिक्वल के लिए जाएगा, क्योंकि उसमें 3 कॉलम रीड करना है तो रिट्रीवल स्पीड सिक्वल का ज्यादा रहेगा उसमें। समझ गया ना? हाँ सर, हाँ। Yes, any questions? No, Yeah. sir. Yeah, Hello. yeah, good. Yeah, someone was asking something. सर वो जो पहले हमने अभी किया था ना, वहाँ पे नेम और डाला था और उसके बेसिस पे वो इटरेट कर रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मतलब सेम नेम भी डेटाबेस में कलेक्ट हो सकते हैं। मतलब पहले जैसे आमरीन नेम था, हम्म, तो वैसे और एक अगर आमरीन नेम का अगर डेटाबेस कलेक्ट हुआ होगा, तो वो हम्म। कौन से बेसिस पर मतलब डेटा इटरेट करेगा, मतलब आउटपुट देगा? अपन तो खाली अभी आमरीन पे सर्च करें ना, तो फिर वो आमरीन के बेसिस पे जो भी 2 रिकॉर्ड है वो 2 रिकॉर्ड शो करेगा। ओके, अभी ये 2 रिकॉर्ड है अमरीन, और यहाँ पे जेंडर डिफाइन, ये यहाँ पे मेल डिफाइंड है। ओके, अभी City names. स्क्रीन। सो अभी अपने पास ये डेटा है, ओके, जिसमें एक अमरीन बुल के यूजर है, उसमें जेंडर डिफाइंड है। दूसरा अमरीन बुल के यूजर है जिसमें सिर्फ ईमेल आईडी डिफाइंड है। ओके, सो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि अपन को कुछ ना कुछ प्राइमरी कीज या फिर यूनिक कॉलम कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो उस कॉलम में वो एक कॉलम रहेगा जो कि यूनिक रहेगा। अभी इन दैट केस अपने पास कोई भी यूनिक कॉलम नहीं है, दोनों में अमरीन है। अब दोनों का अपन को जेंडर फाइंड करना है, तो यूआई पे रिजल्ट क्या आएगा अपन का? जो फर्स्ट रो रहेगा उसमें फीमेल दिखाएगा, और जो सेकंड रो रहेगा उसमें ब्लैंक दिखाएगा या फिर नल दिखाएगा। ओके, अगर इसमें अपन ने कुछ यूनिक की डाल दिया, फॉर एग्जांपल आईडी वगैरह कुछ तो यूनिक है, आईडी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आईडी 1 है, और अपन ने अभी बैकएंड में क्वेरी रन किया कि मुझे वो यूजर का डेफिनेशन चाहिए जिसका नेम अमरीन है और उसका आईडी 1 है, तो इन दैट केस उसका जो जेंडर है वो सिर्फ फीमेल रिटर्न करेगा। और अपन ने एक दूसरा क्वेरी भेज दिया कि नेम अमरीन है पर उसका जो भी स्टूडेंट आईडी और जो भी आईडी है वो 2 है, तो इन दैट केस वो सिर्फ नल रिटर्न करेगा। ओके ठीक है, देयर शुड बी वन यूनिक की और सम ओके। कॉलम। Guys, I'm up for questions. And whatever today's concept, if you have any questions, please go ahead, you can ask. हेलो Yeah. सर, मैक्सिमम टाइम अपना आईडी ही प्राइमरी की रहेगा ना, क्योंकि हो सकता है मतलब अमरीन नाम के मल्टीपल यूजर्स हो Correct. जो सेम सिटी को बिलोंग करते हो, सेम Correct. जेंडर हो, Correct. तो मैक्सिमम टाइम जो अपन प्राइमरी की सेट करते तो वो आईडी मैक्सिमम टाइम आईडी हमारा प्राइमरी की रहेगा। Correct. ID या फिर email ID
जो भी अपने फिजिकल वर्ल्ड में जो भी प्राइमरी रह सकता है ना, तो अपन प्राइमरी की या फिर यूनिक की बोल के उसको डिफाइन कर सकते थैंक यू। हैं। Yeah, is any other questions in DDL, DML और फिर इन ओवरऑल DBMS का बेसिक्स? Okay, then seems like we don't have any questions. So for today's session, you can go ahead and you can repeat the whatever concepts we have gone through, right? You can check DDL and DML. Okay. सो अपने अपने टुडे सेशन में बेसिक ऑफ DBMS कवर कर दिया, लाइक उसमें RDBMS आ गया, NoSQL आ गया। उसके बाद अपन ने देखा टेबुलर स्ट्रक्चर कैसा होता, उसमें कॉलम्स कैसे होते, उसमें डेटा कैसा होता, और DDL क्या होता ऑन द हायर लेवल, DDL क्या होगा, DML क्या होगा। अभी जो भी बेसिक चीज़ है वो अपन ने डिफाइन कर लिया है। तो कल से अपन क्या करेंगे, थोड़ा कोड बेस के साथ खेलते खेलते अपन ये सब चीजें सीखेंगे। फॉर एग्जांपल DDL है तो DDL कैसे, जो क्रिएट स्टेटमेंट वगैरह है, क्रिएट, अपडेट और अल्टर, वो कैसे रन करेंगे। और उसके बाद DML है तो DML में वो डिलीट कैसा करेंगे, अपडेट कैसा करेंगे, वो सब कल प्रैक्टिकल सेशन के साथ अपन शुरुआत करेंगे। सो आज का जस्ट ओवरव्यू सेशन था। So if everyone got like what are the basics, then yeah, then we are good on it. Yeah, guys. If you don't have any questions, then feel free to drop off. Tomorrow we'll connect and we'll have some hands-on about it. Okay. Thank you, guys. Have a good day. Bye.